everyone. Good morning to all. This is Sunita Yadav, your science teacher, and today class we discuss chapter number 8, all question answer. Okay. Now let's start question number 1. Fill in the blanks. Joint of the bone help in the dash of the body. So answer is movement. Movement joints help us in the movement of the body. Next one is a combination of bone and cartilage from the skeleton of the body. जो combination है bone and cartilage का what we call that is a skeleton. Okay, the bones at the elbow are joined by a hinge. Bones जो है elbow के अंदर which type of joint is present? Hinge joint is present. Okay, and the contraction of the dash pull the bones during the movement. What is muscles? क्या होगा? Muscles. Okay. Next is indicate true and false among the following sentences. The movement and locomotion all animal is exactly the same. False. No. सब में movement और locomotion same नहीं होता है ना. Next one is the cartilage are harder than bone. जो cartilage है वो harder होती है bone से. No. Cartilage is softer than bone. तो our answer is false. The finger bones do not have joints. False. और fingers के अंदर joints नहीं होते क्या? होते हैं ना. तभी तो हम अपने fingers को bend कर पाते हैं ना. तो that's why our answer is false. The forearms has two bones. जो हमारी forearm है उसमें two bones होती है. Yes. Cockroach has outer skeleton. Yes. Cockroach has a outer skeleton. Okay. Next matchups में upper जो होता है non movable होता है. Is an immovable joint. Next is fish have fins on the body. Fish की जो body है उसके fins भी present होते हैं और have a streamlined body. उनकी body streamlined भी होती है. What is streamlined body? In mid, its body have a broad. Its body broad and in the ends मतलब कि starting end and last end. Okay. Front part और last part जो होता है comparison to middle part स्लाइटली नैरो होता है. ठीक है. जैसे बोट शेप जो है वो स्ट्रीमलाइन बॉडी है तो फिन जो फिश की बॉडी है वो स्ट्रीमलाइन भी होगी और फिन्स भी प्रेजेंट होंगे. ओके. नेक्स्ट थर्ड रिब्स. रिब्स क्या करते हैं? प्रोटेक्ट द हार्ट. रिब्स आल्सो प्रोटेक्ट द लंग्स एंड प्रोटेक्ट द हार्ट. ओके. एंड स्नेल, व्हाट इज स्नेल? स्नेल क्या हो जाएगा? स्नेल हैज अ आउटर स्केलेटन आल्सो एंड शो अ वेरी स्लो मूवमेंट. सबसे स्लो मूवमेंट जो होता है वो किसका होता है? स्नेल का होता है. ओके. नेक्स्ट इज कॉकरोच. कॉकरोच आल्सो हैज एन आउटर स्केलेटन एंड कैन फ्लाई इन द एयर. और एयर में फ्लाई भी कर सकता है. ओके. नाउ मूव टू आवर नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4. आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन. What is ball and socket joint? Okay. Which of the skull bone are movable? Why can our elbow not move backward side? So 3 questions is there. Answer one by one. We need to this. Yeah, understand this. What is a ball and socket joint? The rounded end of one bone fit. जो rounded end है वो one bone fit होता है another hollow space of the another bone. दूसरी hollow space के अंदर. This is called a ball and socket joint. इसको हम क्या बोलेंगे? Ball और socket joint बोलेंगे. Ball and socket joint allow movement in all the direction. Shoulder and hip can be moved in all direction. So our shoulder have a ball and socket joint. That's why our shoulder and hip joint move in all directions. Next one is which of the skull bone are movable? हमारी skull के अंदर कौन सा part जो है movable है? तो in our skull only lower जो is movable. Okay. हमारी skull के अंदर क्या होता है? सिर्फ lower जो movable होगा. Okay. Now why can our elbow not move backward side? हमारी जो elbow है वो backward side में क्यों move नहीं होती? Because our elbow cannot move backward side because the elbow has a which type of joint? Hinge joint. Okay. तो hinge joint allow movement in only one direction. जैसे ball and socket joint जो है allow movement करता है in all direction. Instead of hinge joint allow a movement only a one direction. जैसे हमारे डोर ओपन होते हैं, विंडो ओपन होती है, ओनली वन डायरेक्शन में मूव होते हैं. ओके. नेक्स्ट गिव 2 एग्जांपल ऑफ बॉल एंड सॉकेट जॉइंट. फर्स्ट वन इज कहां पर होगा बॉल एंड सॉकेट? जो फर्स्ट अपर आर्म मींस शोल्डर एंड जॉइंट ऑफ थाई जो होता है एंड द हिप वाले पार्ट में हमारे जो बॉल एंड सॉकेट जॉइंट प्रेजेंट होता है.
Okay, now next question is what is skeleton? Skeleton क्या होता है? The framework of bone in our body is called skeleton. हमारे bones का जो पूरा framework है पूरी body के अंदर it is called a skeleton. So its definition is very important to you. The framework of bones in our body is called a skeleton. Okay, now we move to the next one. What is rib cage? Ribs are joined with backbone to form a box. Ribs आपस में join होकर form करते हैं एक box बनाते हैं. This box is called a rib cage. This box is called a rib cage. Okay. In front of the ribs join with the chest bone and in back side join with the backbone and make a box. This box is called a rib cage. Okay. नेक्स्ट वन इज नेम टू एनिमल्स विच मूव विदाउट बॉन. ऐसे टू एनिमल्स का नेम मेंशन करना है विच आर मूव विदाउट बॉन. ओके, तो फर्स्ट वन इज अर्थवॉर्म एंड सेकेंड इज स्नेल. अर्थवॉर्म एंड स्नेल. ओके, नेक्स्ट वन इज गिवन एग्जांपल ऑफ एनिमल विच कैन वॉक, क्लाइंब एंड फ्लाई इन द एयर. आंसर इज कॉकरोचेस. क्या आंसर है? कॉकरोचेस. ओके, तो कॉकरोच कैन फ्लाई, कॉकरोच कैन क्लाइंब, कॉकरोच कैन वॉक. ओके, नेक्स्ट वन इज क्वेश्चन नंबर 10. हाउ डज द स्नेक मूव? स्नेक्स हैव अ लॉन्ग बैकबोन एंड मेनी थिन मसल्स. स्नेक में बहुत लंबी बैकबोन होती है, बहुत थिन मसल्स होती हैं विच हेल्प इन द मूवमेंट. The snake body curve into many loops. और जो स्नेक की बॉडी है वो कैसे होती है? काफी सारे लूप्स में कर्व बनाती है. ईच लूप ऑफ द स्नेक गिव इट फॉरवर्ड डायरेक्शन. और वो जो स्नेक लूप्स बनाते हैं ना, ये जैसे एक सेकेंड, जैसे स्नेक ये चीज किया तो ये वन लूप है. ओके, दिस वन इज सेकेंड लूप, थर्ड लूप, फोर्थ लूप. और जो ये ईच एंड एवरी लूप क्या करता है? स्नेक को फॉरवर्ड डायरेक्शन में, फॉरवर्ड मतलब आगे की तरफ, आगे की डायरेक्शन में मूवमेंट में हेल्प करता है. ईच लूप ऑफ द स्नेक गिव इट फॉरवर्ड पुश बाय प्रेसिंग अगेंस्ट द बोन. जैसे आप चलते हो तो आप क्या करते हो? ग्राउंड को प्रेस करते हो, देन यू मूव फॉरवर्ड डायरेक्शन. ओके, तो सेम वैसे ही जो स्नेक के अंदर जो स्केल्स होते हैं, जो लूप होते हैं, वो ग्राउंड के अगेंस्ट प्रेस करते हैं और बॉडी को मूव करते हैं कौन सी डायरेक्शन में? फॉरवर्ड डायरेक्शन में. ओके, और जो स्नेक है उसमें क्या होता है? जैसे स्नेक है उसके बिल्कुल सेंटर में एक लॉन्ग बैकबोन होती है, ठीक है, और बहुत सारी थिन मसल्स होती है जिनकी हेल्प से स्नेक जो है मूव कर सकता है, मूवमेंट शो कर सकता है. ओके, now next one is why do we need two muscles together to form a bone? हमें two muscles की नीड क्यों होती है? तो a muscle can only pull, it cannot push. The two muscles are required to work together to a bone. एक bone को मूव करने के लिए कितनी bones? Two bones मूव करती है, ठीक है, मूवमेंट में हेल्प लेती है. जैसे जिसमें से वन मसल कॉन्ट्रैक्ट, एक मसल क्या करती है? कॉन्ट्रैक्ट हो जाती है, देन बोन इज पुल्ड और वो ऊपर की तरफ वो बोन ऊपर उठ जाती है. और अनदर मसल्स द पेयर ऑफ लूप इट ब्रिंग द बोन इन द ओरिजिनल पोजीशन. तो सेम इसी तरीके से फंक्शन होता है. वन मसल ब्रिंग हुई, देन एक मसल कॉन्ट्रैक्ट होती है, दूसरी जो मसल्स है वो रिलैक्स फॉर्म में चले जाते हैं. फिर दूसरी मसल कॉन्ट्रैक्ट होती है, अदर मसल जो है रिलैक्स फॉर्म में चल जाते हैं. इसी तरीके से हमारी बॉडी के डिफरेंट पार्ट्स मूव करते हैं, हमारी बोन मूव करती है. ओके, नाउ मूव टू अ नेक्स्ट वन इज हाउ इज अ बर्ड बॉडी अडेप्टेड फॉर फ्लाइंग. तो बर्ड्स की बॉडी किन किन चीजों से अडेप्टेड है जिसके कारण जिन रीजन से जो बर्ड है वो फ्लाई कर सकते हैं. तो फर्स्ट वन इज बोन्स आर हॉलो, forelimbs are modified into wings. नेक्स्ट बॉडी इज स्ट्रीमलाइंड. ओके, तो ये थ्री एडेप्टेशंस जो हैं बर्ड्स में प्रेजेंट होते हैं. ओके, yes, next one is what are joints? Write the name of various type of joint. The places where two parts of the body seem to be joined together are called a joint. There are following type of joints: ball and socket joint. देखिए
कितने टाइप के? 4 टाइप के। फर्स्ट वन इज बॉल एंड सॉकेट जॉइंट, पाइवोटल जॉइंट, हिंज जॉइंट एंड फिक्स जॉइंट। आपकी बुक में 4 ही टाइप के जॉइंट्स का डिस्कशन है। एक एक्स्ट्रा जॉइंट होता है ग्लाइडिंग जॉइंट, जो हमारी रिस्ट के अंदर हमारे एंकल में प्रेजेंट होता है, तो यहाँ पर मैंने उसको मेंशन किया हुआ है ग्लाइडिंग जॉइंट। ओके, तो आप 4 भी लिख सकते हो और 5 ग्लाइडिंग जॉइंट भी लिख सकते हो। ओके, next one is write the differences between bones and cartilage. First, bone and cartilage. Bone, they are hard. Cartilage, they are soft. They are hard, they are soft. Okay, तो bone and cartilage क्या हुआ? First, bones क्या होती हैं? Hard होते हैं. Okay, and cartilage हाँ जी, तो they are hard and cartilage they are soft. Next, second one is they cannot bend and cartilage they can bend. Bone जो है वो bend हो सकती है, but cartilage bend नहीं हो सकती. They cannot be bend and cartilage they can be bend. Okay, and next third one is they are used to make the framework of whole body and they help to make some parts of the body. तो इसमें क्या हो जाएगा कि ये जो है हमारी बॉडी का फ्रेमवर्क, पूरा फ्रेमवर्क बनाने में बोन्स हेल्प करती है, बट कार्टिलेज कुछ ऑर्गन, कुछ बॉडी पार्ट से बनाते हैं, जैसे हमारे नोज का टिप पार्ट हो गया, ईयर हो गए, है ना, तो कुछ पार्ट्स कार्टिलेज के बने होते हैं, लेकिन नॉर्मली जो हमारी पूरी होल बॉडी है उसका जो फ्रेमवर्क है वो बोन से ही बना होता है. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 15. हाउ डज द अर्थवर्म मूव? अर्थवर्म कैसे मूव होता है? तो अर्थवर्म कैसे मूव होगा, देखिए ये अर्थवर्म इस तरीके का एनिमल है, ठीक है. अब ये क्या करते हैं, ये सपोज करते हैं इसका हेड पार्ट है, तो इस पार्ट को हम बोलते हैं फ्रंट पार्ट, ठीक है, और ये इसका बैक साइड लास्ट पार्ट है, तो इसको हम बोलते हैं रियर एंड. क्या बोलेंगे? रियर एंड. ओके, तो जब ये जो है अर्थवर्म है वो क्या करता है, सबसे पहले क्या करेगा, अर्थवर्म डजंट हैव बोन्स. तो पहली बात तो ये कि अर्थवर्म के अंदर बोन नहीं होते. आपको याद है अपन ने इससे पहले क्वेश्चन पढ़ा था कि ऐसे 2 एनिमल्स का नेम बताएं जो विदाउट बोन मूवमेंट करते हैं, तो हमने स्नेल एंड अर्थवर्म का नाम लिया था ना. तो अर्थवर्म डजंट हैव अ बोन्स, इट हैज मसल्स. उसके अंदर क्या प्रेजेंट होती है? ओनली मसल्स प्रेजेंट होती है. ओके, ड्यूरिंग द मूवमेंट अर्थवर्म फर्स्ट एक्सटेंड फ्रंट पार्ट ऑफ द बॉडी कीपिंग द रियर एंड पोर्शन फिक्स टू द ग्राउंड. सबसे पहले अर्थवर्म क्या करता है, रियर एंड यानी बैक साइड वाले पार्ट को ग्राउंड से स्टिक कर देंगे. ओके, और फ्रंट का जो पार्ट है उसको एक्सटेंड करते हैं, मींस खींच के आगे की तरफ ले जाते हैं. ठीक है, तो वहां सपोज करते हैं पहले हेड यहाँ था, अब हेड कहाँ आ गया बेटा? इस जगह पे आ गया. ओके, जैसे ही उसको एक्सटेंड करता है, रियर एंड को फिक्स कर लेते हैं ग्राउंड से, देन इट फिक्स द फ्रंट पार्ट. उसके बाद में क्या करेंगे, पहले यहाँ फिक्स किया, देन हेड को उठा के थोड़ा एक्सटेंड किया, स्ट्रेच किया, एंड हेड यहाँ पर आ गया. ठीक है, फ्रंट पार्ट यहाँ पे आ गया. ओके, देन इस फ्रंट पार्ट को यहाँ पर स्टिक करके रियर एंड को फ्री किया. ओके, रिलीज किया यहाँ से, रिलीज द रियर एंड, इट देन शॉर्टन द हैंड, और अपनी हाइट को ये क्या कर लेते हैं, लेंथ को क्या कर लेते हैं, शॉर्ट कर लेते हैं. तो ये किस तरीके का हो जाता है, फिर ऐसी स्ट्रक्चर बन जाती है. ये इसका फ्रंट पार्ट तो यहाँ पर स्टिक किया है, और ये इसका पीछे का रियर एंड यहाँ पर हो गया. ठीक है, अब ये जो रियर एंड है अगेन यहाँ पर स्टिक होगा, और ये जो हेड वाला पार्ट है आगे एक्सटेंड होकर आगे की तरफ मूव हो जाएगा और यहाँ तक पहुंच जाएगा. सेम ये प्रोसेस अगेन एंड अगेन चलता रहता है और अर्थवर्म मूव करते रहते हैं. ठीक है, मूवमेंट शो करते हैं. Okay, so earthworm then fixes the front and releases the rear end. If it then shorten the body and pull the rear end forward. In this way, by repeating such muscular expansion and contraction, earthworm move. इसी तरीके से expansion and contraction का movement चलता रहता है और earthworm move करता है. Next question is question number 16. How does fish move in water? The body of fish is streamlined. जो body है fish की वो कैसी होती है बेटा? Streamlined. The body of fish is streamlined. The streamlined shape help the fish to move in water. ये जो streamline है मैंने आपको बताया था ना, streamline means boat shape. Center से broad and corner से narrow in shape.
तो द स्ट्रीमलाइन शेप हेल्प द फिश टू मूव इन वाटर। जो ये स्ट्रीमलाइन शेप होती है फिश की, ये हेल्प करती है फिश को मूव करने के लिए, किस लिए, वाटर में मूव करने के लिए। ओके, द स्केलेटन ऑफ फिश इज कवर्ड विद मसल्स which make the front part of the body to curve one side। और जो इसका स्केलेटन है वो पूरा कर्व रहता, कवर्ड रहता है वन साइड से, और टेल पार्ट स्विंग टुवर्ड द अपोजिट। अब पूरी बॉडी देखो, इनको किसी भी डायरेक्शन में है, अगर बॉडी इस डायरेक्शन में है, इधर देखिए बॉडी इस डायरेक्शन में है तो टेल अदर डायरेक्शन में चली जाती है। दूसरा, अगर बॉडी अदर डायरेक्शन में है तो टेल अदर डायरेक्शन में जाना स्टार्ट हो जाती है। ठीक है, तो दिस मेक अ जर्क एंड पुशेस द, इससे क्या होता है, एक जर्क मींस झटका लगता है, एंड पुशेस द बॉडी फॉरवर्ड, और जिससे बॉडी क्या हो जाती है, फॉरवर्ड डायरेक्शन में मूव होना स्टार्ट हो जाती है। इन दिस वे इट मूव इन वाटर, इसी वे से जो फिश है वो वाटर के अंदर मूव करती है। ओके, नाउ I think you all understand this chapter very well. Okay, class, check here.